Hello everyone, welcome back to another episode presented by Mind and Health Institute. So today we have a very interesting topic to talk about, and that is lowering the cholesterol naturally, remedies from your kitchen. And this is your host here, Asya Shabazz, and today we are going to be having really professional guest on our board. So let's just proceed with our session. ओके सो स्टार्टिंग ऑफ हमारे पास हमारी फाउंडर हैं डॉक्टर अनीता याकूब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आसिया? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सो फॉर दोज पीपल जिनको नहीं पता हु इज़ डॉक्टर अनीता याकूब, ये हमारी माइंड एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट की फाउंडर हैं। शी इज़ ऑल्सो एन अमेरिकन सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड देन शी वर्क्स इन हर फील्ड एज वेल। तो उनका उसमें एक्सपीरियंस भी है एंड अगेन शी लव्स टू राइट, शी लव्स टू रीड। तो उनने अपनी एक पर्सनलाइज्ड बुक भी लिखी है दैट इज़ कॉल्ड उम्मीद की किरण विच इज़ करंटली present in Liberty Bookshop. All right. Thank you so much, ma'am, for being here. यू वेलकम। Okay. The next guest that we have, so basically on our board we have two more guests. That is, and both of them are nutritionists because our topic is something that is really very much relevant to medicine, and then we also need some experts on board जो कि हमें nutrition से regarding guide कर सके. So starting off, our first guest is Umema Siddiqui. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Dr. Umema. Okay, I guess probably शायद वो disconnect हो गई होंगी. We're gonna get back with her. And then the other guest we have, that is Bisma Minhaj Khan. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम आसिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। Okay, great to have you on board. So, introducing Bisma Minhaj, she is a clinical dietitian. Again, she also has an experience of working in multiple hospitals, and she is a nutritionist जो अपने clients को बहुत अच्छे से deal करती हैं because like she has a great experience of dealing with her clients. So we have her on board ताकि वो हमें इस topic से relevant कुछ remedies दे सकें because our topic for today was regarding हार्ट एंड कोलेस्ट्रॉल एंड सो उससे रिलेटेड हमें कुछ नेचुरल रेमेडीज चाहिए बिकॉज वी डोंट वांट टू गो टुवर्ड्स मेडिसिन और लाइक ड्रग्स के साइड पे. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू न्यूट्रिशनिस्ट ऑन बोर्ड जो हमें इन चीज़ों पे गाइड कर सकें. राइट. ओके. उमैमा, आर यू बैक? कैन यू हियर अस? Yes, yes, उमैमा को. ओके, शी इज़ बैक. ओके. अस्सलाम वालेकुम. मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। मैं भी ठीक. Okay, so introducing Umaima Siddiqui. She is again a human nutrition and dietetics specialist, and उन्होंने internship वगैरह भी की हुई है in two different hospitals, that's Taj Medical and Nemat Begum Hospital. And again, she also has a great experience of working with different clients. So thank you so much for being here, all three of our speakers. थैंक यू डॉक्टर आसिया। Okay. Thank you, Dr. Asya, for having us. No worries. Alright, so let's start with our topic. So before that we jump on to our topic, let's just talk about what Mind and Health Institute itself is. So because like the guests that we do have here right now, Umema and Bisma, आप लोग को शायद ना पता, and then again जो हमें YouTube पे देख रहे होंगे हमारे viewers, for all those who are new here, Mind and Health Institute is an institute that works on several different domains. We work mainly जो डॉक्टर अनीता हैं वो काम करती हैं for different psychological patients के ऊपर काम करती हैं, and then again we इस
basically Mind and Health Institute is an institute that works for on different domains. तो उनका दूसरा काम होता है on working on donation part, जो basically अल खिदमत के साथ coordinate करते हैं, then उनके साथ पैलेस्टीन वगैरह के लिए भी a lot of funds were raised. And then Mind and Health Institute basically aims to help people and get better however they can help them. So this is our main goal. Okay, so let's proceed with our Q&A session today. So I'm very happy to have you all here, and hopefully आज after this session हम लोग बहुत कुछ सीख के जाएंगे एक दूसरे से. Okay, so the very first question is, how prevalent is cholesterol issue worldwide, and how even normal ways in which one can have high cholesterol? Okay, before we like really start, I would like Dr. Anita to talk a bit about what cholesterol itself is. जी आसिया, मेरा ख्याल है आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी. जी जी. Actually, this is not my domain. Mental health is my domain, but जितना मुझे इसके बारे में इल्म है वो यही है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका जो है लिपिड्स बेसिकली इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और आपका जो लिवर है वो लिवर मेटाबॉलिज्म जो है वो कोलेस्ट्रॉल को जो है प्रोड्यूस करता है. तो आप कौन सी फैट खाते हो, आपका ईटिंग पैटर्न क्या है, ये बहुत डिपेंड करता है कि आपका एक हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है, एक अनहेल्दी होता है. तो अगर आपका, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ बुरा नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप फैट लेंगे, जैसे सैचुरेटेड फैट लेंगे, तो वो फिर बैड कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, और अगर आप अनसैचुरेटेड और हेल्दी फैट्स लेते हैं तो फिर वो गुड कोलेस्ट्रॉल बनाएगा. तो प्रेवलेंस के हवाले से अगर हम बात करें तो तकरीबन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 39% जो है कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स होते हैं, और काफ़ी लोग जो हैं इसकी वजह से हार्ट पेशेंट्स हो जाते हैं, और उनको हार्ट अटैक्स होते हैं, और उनकी डेथ भी हो जाती है. और मेल और फीमेल में देखा जाए तो टू सम एक्सटेंट बराबर ही है. फीमेल्स का मैंने देखा था स्टैटिस्टिक्स, तो ज़्यादा उसमें कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा पाई जाती है. हाई कोलेस्ट्रॉल फीमेल्स में ज़्यादा होता है. और ये कहना कि जो है वो सिर्फ अगर आप हेल्दी हों, या ये बहुत मिथ है कि जो है वो अगर आपका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी हाई होगा. दिस इज़ टोटली रॉन्ग. कि नॉर्मल वेट के लोग भी जो हैं उनको भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जो है हो सकती है. Right. तो आई Thank you. थिंक जी So जी now that वैसे डॉक्टर अनीता, आपने कहा कि आपको इतना नॉलेज नहीं है, बट आई फील कि आपने जितना भी बताया दैट वाज कम्प्लीटली करेक्ट एंड बहुत रिलेवेंट है. एंड नॉर्मल जो लोग होते हैं जिनको चीज़ों का आइडिया नहीं होता, उनके लिए दिस वाज डेफिनेटली वेरी बेनिफिशियल. ओके, सो नाउ जंपिंग राइट टू आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि now, cholesterol एक ऐसा word है जो like everybody would have definitely heard about, and then now that Dr. Anita has also introduced us to what this really is about. So my question is that how big of a problem is it really? Like globally अगर consider किया जाए तो कितना बड़ा problem है? And then what's important to understand is that even if the people who aren't overweighing, they can struggle with cholesterol, right? So the question to the nutritionist now here is कि why is that so? कि even जो लोग जो normal weight के हैं, because just like Dr. Anita told, and like that is something that I also do know कि आपके पास कोलेस्ट्रॉल तभी बढ़ता है जब आपके पास LDH ज़्यादा हो गया, like आपके पास फैट ज़्यादा हो गया. So all those people जो like normally वैसे ही इतने slim हैं, why are they getting this problem? आप कहने के जितने लोग वो खाना नहीं खाते हैं वो का ऑलरेडी अंडर वेट है, फिर भी उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है. तो ये जस्ट आपकी डाइट से मतलब नहीं हो पाता. आपकी लाइफ स्टाइल किस तरह की है, आपका जो है वो क्या नाम है, आप सोचने में ठीक है, आपको कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है, मतलब ये चीज़ें भी आपकी बहुत मैटर करती है कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है. और ये बहुत कॉमन चीज़ है आजकल के लोगों में, जिसके वजह से उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इंक्रीज हो जा रहे हैं.
All right, thank you. And Dr. Bisman, do you have any point to add in? यस, एक्चुअली जो है अक्सर देखा जाता है कि जो है मिसकंसेप्शन है कि जो लोग जिनका बीएमआई नॉर्मल है या जो अंडरवेट है या स्किनी है उनको कोई कोलेस्ट्रॉल या हार्ट डिजीज नहीं हो सकती, और जो ओबीज है या जिनको ओबेसिटी है उन्हें ही ये प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि बहुत से लोगों को जो है प्रॉब्लम होती है, मतलब पेरेंट्स से इनहेरिट होता है या मदर से या फादर से। तो उसमें ये होता है कि इस कंडीशन में कहते हैं फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिnemia। इसमें क्या होता है कि आपकी अगर किसी एक पेरेंट को है तो वो जीन आप में भी आएगी, और उसकी वजह से जो है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो हाई रहते हैं, क्योंकि कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सही वो प्रेजेंट नहीं होते, इनहिबिट होते हैं। तो इस वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई रहते हैं, रिगार्डलेस कि आपके जो है बीएमआई क्या है, आप स्किनी हो या नहीं हो, आप ज़्यादा फैट कंज्यूम कर रहे हो क्या है, इस वजह से होता है। बाकी और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि जो है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, आप इतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते, जैसे कि आजकल की जनरेशन में ये है कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी कम है। हम जो है प्रेफर करते हैं कि हम वॉक ना करें, हम मतलब आसान चीज़ों में हम बहुत लेज़ी हैं, तो इन चीज़ों की वजह से भी जो है आपका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल अक्सर जो है देखा जाता है कि लीन पीपल में भी ज़्यादा होता है। ऊपर से जैसे लीन होते हैं लोग तो वो जो ना उन्हें कुछ दिखता नहीं, फिजिकली दिखता नहीं कि जो है वो ओबीज हो रहे नहीं हो रहे, तो वो जो ना जंक फूड बहुत खाते हैं कि हमें तो लगता ही नहीं है, हम तो खा सकते हैं। तो जंक फूड जो होता है उसमें ट्रांस फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को वो हाई करते हैं, और ये सब अनहेल्दी फैट होता है। और जो है स्मोकिंग स्मोकिंग की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल पे अफेक्ट आता है। Right. और ना And we हार्मोनल बैलेंस इसमें हो जाता है अक्सर, लाइक उनके पीरियड्स वगैरह टाइम पर नहीं हो रहे होते या इस टाइप का कुछ इशू होता है, तो उसमें भी जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के चांसेस होते हैं। right. Thank you. And Dr. Anita, would you like to add something in? जी, जी, बस मैं यही बता रही थी कि कोलेस्ट्रॉल के हवाले से आपने पूछा था कि कोलेस्ट्रॉल में क्या चीज़ होती है, तो बेसिकली इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक एलडीएल होता है और एक एचडीएल होता है। एलडीएल इज़ बेसिकली लो डेंसिटी लिपिड और एचडीएल इज़ हाई डेंसिटी लिपिड। तो जो एलडीएल होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और जो एचडीएल होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से कौन सी चीज़ लेते हैं, उससे मैटर करता है हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल डेवलप होता है। जैसे एवोकाडोज हो गए, इस तरह की डाइट लें, फिश है, इसमें नट्स हैं, इसमें जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होगा। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होगा वो जो है आपके सैचुरेटेड फैट जैसे बटर या इस तरह की रेड मीट, इस तरह के और ऑयल्स, बहुत से ऐसे ऑयल्स होते हैं जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, फ्राइड आइटम, प्रोसेस्ड फूड, Right. ये सारी चीजें जो है वो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल। Yes, absolutely. That's a very crucial point जो आप तीनों ने बहुत अच्छे से like इस पूरे क्वेश्चन को आंसर किया है। And just to summarize जो भी आप सबने कहा है, so basically it's the diet and it's the lifestyle, it's basically the physical activity one is on to क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। And I would also like to add कि genetic भी हो सकता है, because there are a lot of diseases जो आपको genetically भी affect करी होती है, so there are a lot of leading जी, factors जी, जो कि बिल्कुल इन सही सबको कहा। cause करते हैं। Okay, so let's proceed to our next question. Okay, so the next question is कि now हम सब ने सुना हुआ होगा कि there are some remedies, कुछ ऐसे टोटके होते हैं जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लो करने में मदद करते हैं। So coming towards the experience side, professionalism side पे we have two nutritionists जो obviously अपने clients को deal करती हैं। So like have you seen any significant change in your clients जब आपने उनको कोई remedy या कोई टोटका वगैरह recommend किया हो? या कभी होता है ऐसे काफ़ी पेशेंट, जैसे कि अगर सिवियर फॉर्म में हो तो उसको तो आप उस वक्त मेडिकेशन के साथ आप
ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है आपको रेमेडीज की भी ज़रूरत पड़ती है। आप लॉन्ग टर्म में मेडिकेशन नहीं ले सकते, तो उसमें आपको मेंटेन करना होता है अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को। उसके लिए जो है गार्लिक जो है एक बहुत बेनिफिशियल होता है। लहसुन जो है घर घर में अवेलेबल भी होता है, इजीली परचेजेबल भी होता है, जो आराम से लोग यूज़ कर सकते हैं। वो अगर आप 1 to 2 क्लोव्स जो होते हैं गार्लिक के, लहसुन के, अगर आप वो लें एक दिन में एम्प्टी स्टमक लें, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। Okay, thank you. And Dr. Umema, would you like to add something in? जी बिल्कुल, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें रह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गार्लिक की वजह से नहीं करता है, जैसे उनको फाइनल प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो वो लोग नट्स ले सकते हैं सुबह इनके स्टमक में, मतलब हेल्पफुल नट्स ले, या फिर आप इवनिंग स्नैक्स के टाइम भी ले सकते हैं। आप सुबह नाश्ते में ओट्स का नाश्ता करें, उसमें आप थोड़ी सी जो है वो सिलेक्ट कर लें, सॉरी नहीं, फ्लैक्स, आप उसमें फ्लैक्स मिला लें और उसके साथ खाएं, आप लोगों को उसको। और इसके अलावा हम लोग घर में खाना बनाते हैं, उसमें हम लोग हल्दी को, अगर हम हल्दी में खाने में थोड़ी सी ऐड कर देना तो बहुत फायदेमंद होती है। लाइक हल्दी जो होती है वो ये काम करती है कि जो हमारा खाने में जब फैट होता है ना, उसको जो होती है वो बाइंड कर देती है, वो फिर फैट कर नहीं सकता, तो वो बहुत बेनिफिट होती है। ग्रीन टी और यूज़ इसके कर अलावा सकते हैं आप, एलडीएल लेवल्स को वो जो है आपके विदाउट शुगर आप 1 से 2 कप अगर आप दिन में लेते हैं, एलडीएल लेवल्स को कम कर सकता है ग्रीन टी। इसका घोल ले लें आप खाने के बाद, मील्स के दौरान में, तो वो भी जो है वो उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, तो वो जो है आपकी जो कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन है बॉडी में, उसको वो कम कर देता है। इसी तरह से जो है एप्पल साइडर विनेगर होता है, वो आपके लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव करता है, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो आप 1 to 2 टीस्पून आप वाटर में डाइल्यूटेड फॉर्म में लें। अदरवाइज जो है वो आपको जो है, और अगर आप बहुत ज़्यादा ले लें तो वो आपको कुछ इश्यूज भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये हेल्पफुल होता है एप्पल साइडर विनेगर भी। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप जो है हल्दी ले लें, जैसे कि मैम ने बताया, और अलसी के बीज भी जो है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, तो वो आप योगर्ट में या फिर स्मूदीज में मिक्स करके ले लें, 1 to 2 टेबल स्पून मिक्स करके आप यूज़ कर लें, तो वो भी काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। एब्जॉर्प्शन जो होती है इसकी कोलेस्ट्रॉल की आपके स्टमक में, वो थोड़ा स्लो डाउन कर देता है। और हम लोग जो है वो घर में ऑयल, जैसे कि जिनको बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का इशू होता है ना, उनके लिए ये कि जैसे कि हम लोग घर में ऑयल यूज़ करते हैं, उसकी जगह में ऑलिव ऑयल अगर हम यूज़ करें अपने हर मील में, तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है। लेकिन ऑलिव ऑयल हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसके अलावा कलौंजी, ब्लैक सीड्स होती है, वैसे भी कलौंजी का सुना था, आप साथ दाने रोजाना कलौंजी के खा सकते हैं, बहुत फायदेमंद होती है कोलेस्ट्रॉल लेवल को ओवरकम करने के लिए। तो मैं तो अपने फ्रेंड्स को लाइफ में कलौंजी ऐड करती रहती हूँ मॉर्निंग में। Okay, that was amazing. आप लोग ने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, लाइक आई फील आप लोग ने ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें बताई हैं जो इजीली हमारे किचन्स में अवेलेबल होती हैं. सो डॉक्टर अनीता, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग इन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? जी, ऑलरेडी इन लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा बताया, मैमा ने और बिस्मा ने। मैं सिर्फ यही एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी और उसके हवाले से मैं चंद पॉइंट ऐड करूँगी, और उसमें ये बताया था कि आप अगर अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर दें तो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगा। और उसमें ये सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद होती हैं, जैसे आप सैलड्स खा सकते हैं, ओट मील खा सकते हैं, और बहुत चीप है ये सारी चीज़ें ना। जौ का दलिया तो बहुत आसानी से मिल जाता है, सलाद भी आप आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा रेड मीट के बजाय आप मछली खाएं, चिकन खाएं, और इसके अलावा प्लांट बेस्ड स्मूदीज़ होती हैं, जैसे आप कोई जैसे खीरा वगैरह है उसकी स्मूदी बना ली, ग्रीन वेजिटेबल्स डाल के, तो उससे जो है जैसे चुकंदर है, गाजर है, और इस तरह लेमन, इस तरह का आप बना के जो है ना प्लांट बेस्ड स्मूदीज ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप अपनी डाइट को चेंज कर दें और अपने पैटर्न को चेंज कर दें, बजाय ऑयली ऑयली खाने खाने के, निहारी और फरमा एंड ऑल, ये भी अच्छा लगता है, लेकिन क्या अगर हर वक्त यही होगा तो जाहिर है फिर ये प्रॉब्लम तो डेवलप होंगे।
प्लांट बेस्ड में अगर बात की जाए ना तो करेले का जूस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो जो है वो ओवरकम करने के जी, करेले का जूस। पर उसके लिए हिम्मत चाहिए ठीक है उसको पीना। हर कोई नहीं लिए। पी पाता करेले का जूस हो या तो लेकिन ये लेकिन बहुत अगर आप बेनिफिशियल चुकंदर गाजर का भी बना लें तो वो भी अच्छा है। जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना करें कि उसमें ऑलरेडी शुगर भी होती है। जी तो ये है कि वैसे 1 कप आप पी लें तो वो भी बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है। सही सही। आई फील आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। मेरा एक सवाल था डॉक्टर बिस्मा आपसे, आपने जो बीन्स के बारे में बताया, आपने कोई स्पेसिफिक टाइम इसके लिए मेंशन किया था या नॉर्मली जो लंच डिनर टाइम पे खाते हैं? बीन्स के बारे में मैंने आपको बताया। जी मैंने बीन्स की वर्ड यूज नहीं किया था। ओके, हो आई थॉट सकता है आपको ये वाला। थोड़ी वो आवाज़ में थोड़ा सा वो था, सो आई थॉट आपने वो वर्ड मेंशन किया था। और दैट्स फाइन। सो जस्ट टू समराइज आप सबने जो भी कहा, सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि फॉर एग्जांपल गार्लिक, एप्पल साइडर विनेगर, एंड देन आल्सो लाइक ऑयल्स फॉर एग्जांपल, जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं जो नॉन सैचुरेटेड सैचुरेटेड वाले होते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपके पास ऑलिव ऑयल आ जाता है, या आपके पास जो लाइक नॉर्मली थोड़ा आपके कोलेस्ट्रॉल को लेस अफेक्ट करे, एंड देन ऑल्सो वो फूड कंज्यूम करना है जो आपके फाइबर्स, जो रिच इन फाइबर्स हो, बिकॉज अगेन वो आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह को हेल्प करेंगे रिड्यूस करने में। ओके, नाउ अब थोड़ी बात कर लेते हैं हम टाइमिंग वगैरह के ऊपर, बिकॉज लाइक मैंने आपसे थोड़ा वो बीन्स वाला सवाल किया जो मैंने गलत सुन लिया था, बट आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड उसका टाइम वगैरह। तो considering this point, is there like any specific time जिसके ऊपर like आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई होता है, सो या कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम जिस पे आपको like एक स्पेसिफिक, ये जो आपने रेमेडीज के सारे अब आइटम जो अभी बताए हैं, सो लाइक इज देयर एनी स्पेसिफिक टाइम जिस पे ये सब चीज़ें खाने से ज़्यादा फायदा? फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर आपने गार्लिक का तो बोला था कि सुबह खाना है निहार मुँह, बट देन अगेन बाकी जो सारी चीज़ें बोली, इज देयर लाइक अ स्पेसिफिक टाइम एंड डज टाइम रियली अफेक्ट? क्या आप टाइम पे अगर कोई खाना खा रहे हो तो क्या उससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ओवरऑल? जी जैसे कि गार्लिक का मैंने बताया कि आप जब रॉ गार्लिक लेते हैं तो सुबह एम्प्टी स्टमक लेने से होगा कि उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो ज़्यादा अच्छे से होगी, और इसकी कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो आपके स्टमक को हेल्दी रखने में हेल्पफुल रहेगा, और इसकी एब्जॉर्प्शन जो है एम्प्टी स्टमक ज़्यादा अच्छी होगी। राइट। डॉक्टर वर्मा, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग लिए। इन? यस बिल्कुल, मैंने आपको ओट्स बोला था कि आप मॉर्निंग में ओट्स ले लो तो वो बहुत बेनिफिशियल है। लाइक आप सुबह सुबह आप कुछ भी लेते हो तो आपको वो खाना वो चीज़ें लेनी चाहिए जो आपकी मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छी हो। तो आप ओट्स में आप फ्लैक्स सीड्स अगर ऐड करके लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल है। आपके कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होती है पूरे दिन में आप जो भी लेते हैं। इसके अलावा मैंने आपको हल्दी का बताया था, तो आप हल्दी हर खाने में इस्तेमाल करें। भाई ऐसी कोई टाइमिंग नहीं है कि आप जो भी मील बना रहे हो आप हल्दी उसमें इस्तेमाल करो। राइस आप ले रहे हो तो आप मॉर्निंग में भी ले सकते हो और खाने के बाद भी आप ले सकते हो। तो ये होगा कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होगा ना तो वो उसको कंट्रोल में आ जाएगा। और इसके अलावा तो मैंने आपको क्या बताया था, लाइक प्लीज आप कलौंजी सुबह बेस्ट टाइम है कि आप सुबह नहा लो, साथ जाने कलौंजी के आप लो और उसको पानी के साथ में पी लो, तो बेस्ट टाइम है कि आप सुबह कलौंजी खाओ। और जैसे कि मैंने नर्स का बताया ये भी कि अगर जैसे क्रेविंग्स होती हैं कि इंसान नहीं खाना चाह रहा है कोई अनहेल्दी फूड, तो वो नर्स ले ले कंज्यूम कर ले स्नैक्स टाइम में, तो वो जो क्रेविंग्स हैं वो आपकी फुल भी हो जाएंगी, फुलफिल भी हो जाएंगी, और जो आपकी जो हेल्दी फैट्स हैं रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। अनहेल्दी से बेहतर है कि आप हेल्दी फैट ले लें। बिल्कुल। और एक और चीज़ है मेथी दाना, हम लोग किचन में हमारे घरों में होता है मेथी दाना ना, तो अगर हम मेथी दाने को अगर हम रात में पानी में भिगो के रखते हैं 1 to 2 लेना, हम उसको रात में पानी में भिगो के रखते हैं और हम सुबह उठ के वो पानी पीना और वो चीज़ें हम चबा के खा लें तो वो
वो भी हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को ओवरकम करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। And Dr. Anita, would you like to add something in? जी, मैं ये तो बहुत सारी टिप्स बताई हैं इन लोगों ने और माशाल्लाह से काफ़ी हेल्पफुल टिप्स हैं। मैं बस ये ऐड करूँगी कि जैसे अभी रिसेंट रिसर्च हो रही है, आप लोगों ने भी सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से। तो Absolutely. इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो ये है कि आप मतलब जैसे ब्रेक ले लें, जैसे खाना खा लिया आपने, नाश्ता कर लिया, तो उसके बाद आप थोड़ा लंच वगैरह स्किप करके आपने 6 बजे शाम में या 7 बजे खाना खा लिया रात का। तो इट्स लाइक कि आप फास्टिंग की तरह ही होता है, लेकिन आप पानी वगैरह पी सकते हैं बीच में और चाय वगैरह ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं। लेकिन ये कि खाना प्रॉपर या नट्स वगैरह जैसे ये बता रहे हैं कि नट्स ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें, स्नैक्स ले सकते हैं, हेल्दी स्नैक्स। लेकिन पूरा प्रॉपर मील नहीं खाएं और ब्रेक कर दें, तो आप देखिएगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल खुद ब खुद जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और आप काफ़ी हेल्दी रहेंगे। अच्छा आसिम, मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि अक्सर जो ना पेशेंट्स क्या करते हैं कि कंसिस्टेंट नहीं रहते। जैसे उन्होंने एक दिन यूज़ की रेमेडीज फिर छोड़ दी, फिर 2 हफ्ते बाद यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपको एक एंटीबायोटिक का जब आप कोर्स करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं हमने पूरे 1 वीक या इतने टाइम पीरियड तक कंप्लीट करना है, या इफेक्टिव तब होगा। इसी तरह से रेमेडीज भी आपको एक टाइम तक मतलब डेली आपको लेनी है। ये नहीं कि आपने एक दिन छोड़ दिया फिर आपने दूसरे दिन ले लिया तो उसकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो कम हो जाती है, वो इफेक्टिव नहीं होती। तो आपको इसमें कंसिस्टेंट रहना होता है। और दूसरा यही कि आपको हाइड्रेशन का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे अगर आप सॉल्युबल फाइबर ले रहे हैं कि वो एब्जॉर्प्शन जो है कोलेस्ट्रॉल की कम करे अपनी डाइट में, तो उसके लिए जो है वाटर इनटेक होना भी ज़रूरी है आपका। बिल्कुल, ये बहुत मेन चीज़ है। लाइक लोगों को ये होता है कि उनको चीज़ें असर करना शुरू होती हैं और वो उन चीज़ों को छोड़ देता है, तो बस हमें ठीक होगा। और तो ये बहुत मेन चीज़ है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है उस चीज़ को। Absolutely. एंड मेरा एक सवाल था, लाइक नॉर्मल लोग, अब आप लोग ने जैसे सबने अपना अपना इनसाइट्स दिए, दैट वाज लाइक रियली हेल्पफुल, बट देन लाइक आप सबने बोला कि ये सबको सुबह में खाना है, तो लाइक एक इंसान सुबह में क्या क्या खाएगा? नहीं, हर चीज़ सुबह में नहीं होती। जैसे कि मैंने जैसे बोला कि गार्लिक आपने सुबह में ले लिया, और ब्रेकफास्ट में जैसे कि ब्रेकफास्ट में जो है जौ का दलिया या ओट्स इसलिए कहते हैं कि आप ब्रेकफास्ट में जो मोस्टली लोग ब्रेकफास्ट में जो ना ऐसी चीज़ें खाना पसंद है जो कि क्विकली बन जाए। तो लोग अक्सर ये भी होता है कि लोग जो है ब्रेकफास्ट में लोगों को शौक होता है कि वो पराठे खाएं या जो है अंडा खाएं। तो इसकी जगह आप ओट्स या ये ले लें। ये आपको जो है मतलब आपका पेट भी भर जाएगा इससे और आपके लिए हेल्दी भी रहेगा। तो ये एक मतलब ऑल्टरनेटिव है दूसरी चीज़ों का। सही सही। वरना ये आप स्नैक्स में भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। और बाकी आप नट्स वगैरह तो आप स्नैक्स में कंज्यूम करेंगे, और बाकी अगर हल्दी वगैरह की बात की जाए तो वो आप खाने में ही डालेंगे बनाने में, तो वगैरह तो जाएगा। मतलब जरूरी नहीं है वो चीज़ें हल्दी सुबह में आए। ठीक ठीक। Okay, now let's move to our next question. So the next question is, okay, what is that biggest mistake that you have seen among your clients के आपने for example उनको कोई रेमेडी वगैरह आपने उनको रेकमेंड करी, ठीक है, और उन्हें वो रेमेडी कर भी दी, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आपने गार्लिक रेकमेंड किया, उन्होंने वो गार्लिक ले भी लिया और लाइक वो आपको बता रही है मैंने गार्लिक यूज़ करा है और मुझे कोई असर नहीं पड़ा। तो लाइक कोई ऐसे केस आए जिससे लाइक टोटल ऑपोजिट केस हो गया हो कि लाइक उनकी कंडीशन वर्स हो गई हो, या कोई आपके पास ऐसा केस आया हो जिसने लाइक जिसने लाइक सही फॉलो नहीं किया हो एंड देन उसकी वजह से खराब हुआ। सो लाइक वी वुड लाइक टू हियर सम स्टोरीज हियर। हाँ, ऐसा हो जाता है। जैसे कि जो है लोग जो ना ओवर कंजम्पशन कर लेते हैं कि जो ना लोगों को होता है कि अगर हम ज़्यादा खा लेंगे तो हम ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक ही दिन में ज़्यादा खा लेते हैं कि ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएंगे, या मतलब डोज ज़्यादा कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी कुछ और मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं। अब उनको डॉक्टर ने जो है प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन जो कि ब्लड थिनर्स, ठीक है। अब गार्लिक जो है एज अ ब्लड थिनर भी काम करता है। तो अगर आप मेडिकेशन के साथ में गार्लिक का यूज़ कर रहे हैं और ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपकी कंडीशन बहुत वर्स हो सकती है कि आपको ब्लीडिंग हो सकती है, आपका ब्लड थिन हो सकता है।
ब्लीडिंग जैसी कंडीशन हो सकती है, या फिर अगर आपने जो है एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर लिया, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, तो आपका जो है अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है एप्पल साइडर विनेगर के ज़्यादा कंजम्पशन की वजह से। आपने डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ नहीं किया, आपने ऐसे ही यूज़ कर लिया, तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी जो है इतना मतलब लोग अक्सर ओवर कंजम्पशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है वर्स कंडीशन में चले जाते हैं ठीक होने की बजाय। और अगर जैसे कि बात की जाए नट्स की, लोग जो नट्स खा रहे होते तो वही से हमारा जो वो कोलेस्ट्रॉल है सब कंट्रोल हो रहा है, चलो हम भी खा सकते हैं टैबलेट। तो मतलब उनको फील नहीं होता, वो खाए जा रहे होते हैं और उससे उनका वेट गेन की तरफ चला जाता है, और ये बहुत कॉमन देखने में आती है ये चीज़ें। और दूसरा ये कि वो इनकन्सिस्टेंसी वही कि स्टार्ट करते हैं, उसको फायदा होने लगता है और वो फिर बोल के बस हम तो ठीक होगा। और और कभी ये भी होता है कि जैसे आप जो ना वो रेमेडीज तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में जंक भी खा रहे हैं और हेल्दी फैट्स नहीं ले रहे हैं, अनहेल्दी फैट्स ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो जो रेमेडीज यूज़ कर रहे हैं उनका फिर फ़ायदा नहीं दिखेगा आपको, वो फ़ायदा खत्म हो गया, वो काउंटरफीट हो गया, वो आपको नहीं फ़ायदा नज़र आएगा। जी, मेरा यही पॉइंट है कि उनकी डाइट अच्छी होती है और बस वो इसी की तरफ जा रहे होते हैं कि बस हमसे ठीक होगा, और उनका डाइट और उनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल खराब होता है। सही सही। And Dr. Anita, would you like to add something in? यस, मैं यही कहूँगी कि अगर हम जैसे क्लाइंट को समझाते हैं कि आपको जो है ना ऑयल या फैट नहीं लेनी, तो वो बिल्कुल ही हर तरह की फैट ही अवॉइड कर देते हैं। मेरे पास इस तरह का भी केस आया था कि मतलब वो फिर बिल्कुल ही जो है वो Good फैट यानी गुड fats. फैट को भी, हाँ, वो बिल्कुल ही हटा देते हैं। तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि व्हाट आर गुड फैट्स एंड व्हाट आर बैड फैट्स। तो इससे रिलेटेड लोगों को बताना चाहिए। जैसे अब लोग जो है ना मतलब जर्दी को हटा देंगे, नट्स भी नहीं खाएंगे और जो अच्छी फैट है उसको नहीं लेंगे। तो फैट जो है हमारे ब्रेन के लिए, क्योंकि अपना मेंटल हेल्थ से भी ताल्लुक है, तो फैट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, आपकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है उससे रिलेटेड, और भी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आप बिल्कुल ही ओमिट कर देंगे अपनी लाइफ से तो फिर उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। जी। जी, एक्चुअली जो ना कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेली रिक्वायरमेंट कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरी है। 80% तो हमारा लिवर ही जो है कोलेस्ट्रॉल बनाता है, जी बाकी जी जी 20% हम जो है अपनी डाइट के थ्रू लेते हैं, जो कि हम हेल्दी फैट लें तो वो मेंटेन है, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो अनहेल्दी लेते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल हमारी सर। बॉडी में बहुत से फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जैसे हमारी जो ना सेल्स की फंक्शनिंग, सेल्स की सिंथेसिस, हार्मोनल सिंथेसिस। अगर आप कोलेस्ट्रॉल ही नहीं तो आपके हार्मोनल इश्यूज आपको हो सकते हैं। आपकी ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी होता है ओमेगा 3 जो है फैट ज़रूरी होता है, आपकी ग्रोथ के लिए ओमेगा 6 ज़रूरी होता है। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी में। फैट जो है आपकी मतलब कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस करवाते हैं। अगर फैट ही नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल ही नहीं होगा, तो फंक्शंस कैसे होंगे? मतलब हर चीज़ एग्जैक्टली। में अच्छी लगती है। अगर आप किसी भी चीज़ की ओवर कंजम्पशन करेंगे, तो वो चीज़ जो है आपकी कंडीशन को खराब ही करेगी, वो आपको कभी भी फायदा, अगर आप उसको लिमिट में लेके चलेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगी। बिल्कुल Absolutely. सही कहा दोस्त आपने। All of these things make perfect sense. And आप लोग ने इसको थोड़ा सा एक holistic touch भी दे दिया है, and expectations वगैरह को आप लोग ने meet कर दिया है. So let's move to the bigger picture now, and हमारा final question for the session. So now that आप लोग ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, so like in the very first question आप लोगों ने बताया that we need to manage our lifestyle वगैरह as well. So touching that point again, have you noticed any emotional factors, for example like लोगों का stress या उनकी sleep cycle या overall anxiety, depression, something like that जो भी उनकी life में चल रहा हो, does that really affect अगर आप उनको कोई रेमेडी रेकमेंड करी एंड दे आर टेकिंग दैट, बट अगेन उनके लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, सो डज दैट अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ lowering cholesterol or not? जी, हमें ऐसा होता है कि पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें जैसे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है किसी चीज़ के लिए, जैसे वो अगर ओबीज आया तो उसको अपने वेट का इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, या जो भी मतलब डिफरेंट चीज़ें होती हैं आजकल, हर किसी को डिप्रेशन या स्ट्रेस रहता है।
तो उस वजह से जो है अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक है क्रॉनिक स्ट्रेस है, तो अब हमारे जो ना बॉडी में बहुत से हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल होता है, वो स्ट्रेस मतलब जो है इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे तो हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा, जिसकी वजह जो है आपकी एचडीएल लेवल्स को कम कर देता है और एलडीएल लेवल्स को बढ़ा देता है। इसी तरह से जो है बहुत से ऐसे लोग जो जो ना मतलब इनकी स्लीप क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, वो रात को देर तक जो है उठे हुए हैं, सुबह देर तक सो रहे हैं, तो आपकी बॉडी का एक फंक्शन है जो एक टाइम को 24 आवर आपकी बॉडी का जो है रिकॉल होता है। तो रात को आपकी बॉडी जो है अपने आप को मेंटेन करती है, मेंटेनेंस करती है। रात को जल्दी सोना, टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है, टाइम पे स्लीप लेना 8 आवर्स की बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग नहीं लेते, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऑल्टर होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ते हैं, आपकी भूख कम हो जाती है, आपकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत देर देर तक रात तक जाग रहे होते हैं तो फिर उतनी ज़्यादा स्नैक्स खाते हैं, वो इतनी ज़्यादा बिंज ईटिंग करते हैं, और जो है कार्ब ज़्यादा लेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के फैट ज़्यादा लेंगे, जिसकी वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, यही है कि कोर्टिसोल लेवल जो होता है ना, आपका अगर ज़्यादा होता है तो आपको इमोशनल ईटिंग होती है। लाइक आप और खाना खाते हो, जैसे कि मैंने बताया कि आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होगा और आप नींद भी फुल नहीं कर रहे होगे। मैक्सिमम 8 आवर्स एंड मिनिमम 6 आवर्स की नींद होती है। अगर आप पूरी नहीं कर रहे हो तो जाहिर है कि आपको जो है वो स्ट्रेस लेवल भी नींद पूरी ना होने की वजह से बढ़ेगा। और जब स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और नींद पूरी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल खुद ही बढ़ेगा। काम का बर्डन होता है, लोग जो है वो बस काम कर रहे हैं, लोग किसी का स्ट्रेस लेकर और नींद खराब करके अपना सारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल और बॉडी स्ट्रेस के तो लेते ही कंटेंट लेते हैं, फिर वो उसी बर्डन में जो है, सही कह रही हूँ मैम, स्ट्रेस तो लेते ही लेते हैं, वो उसी बर्डन में जो है वो बिंज ईटिंग भी करेंगे, ओवर ईटिंग भी करेंगे। स्ट्रेस की वजह से अक्सर लोग ओवर ईटिंग करते हैं, ये एक मतलब साइकोलॉजिकल को है कि ट्रेट है कि लोग जो है अक्सर परेशान होते हैं, इमोशनल थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, तो वो चॉकलेट ज़्यादा खाएंगे, तो वो फैटी चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं अपने मूड को अच्छा करने के लिए। फूड वो ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं एज कम्पेयर टू हेल्दी फूड। Absolutely. Very insightful. Anything, Dr. Anita, would you like to add in? जी, जी, मैं ये बिस्मा का पॉइंट मुझे बहुत समझ में आया, क्योंकि जो हमारे पेशेंट्स आते हैं नॉर्मली वो स्ट्रेस के ही होते हैं, और स्ट्रेस जो है वो मेनली आपके कॉर्टिसोल को जनरेट करता है, हार्मोन्स को। स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, और फिर कॉर्टिसोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपकी एलडीएल और एचडीएल को वेरी करने में। Yes. एचडीएल लेवल जो है उसको लो कर देता है, यानी जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को इंक्रीज कर देता है, तो कोलेस्ट्रॉल फिर लेवल बढ़ जाता है। तो बायोलॉजिकली देखा जाए तो यही चीज़ है। और साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो ज़ाहिर है जब स्ट्रेस होता है तो फिर आपका दिल चाहता है कि आप ओवर ईटिंग करें, और फिर ये ईटिंग डिसऑर्डर्स वगैरह भी प्रोड्यूस होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, एंड अगेन फिर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। यस। एंड आपने डॉक्टर अनीता जो शुरू में बात बोली थी ना, कि फीमेल्स के अंदर रिसर्च के मुताबिक देखा गया है कि दे टेंड टू हैव मोर कोलेस्ट्रॉल इश्यूज। सो वन ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर दैट इज़ के ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन। नाउ ईस्ट्रोजन इटसेल्फ जो है आपकी, अगर आप ओवरऑल फीमेल का बीएमआर वगैरह या उनका फैट डिपॉजिशन मैकेनिज्म देखें तो उनका मेनली जो है वो उनका होता है, उसको आप वर्ड देते हैं साइंटिफिक, दैट इज कॉल्ड गाइनॉइड, के लाइक बेसिकली उनका लोअर बॉडी में उनका फैट एक्यूमुलेट होता है एज कम्पेरेटिवली टू मेन जिनका लाइक स्टमक एरिया में होता है। सो दैट इज़ वन थिंग कि उनका अगेन ये सब उनका हॉर्मोन्स रिलेटेड होता है। सो इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर कि मेनली जो कोलेस्ट्रॉल इश्यूज आपको फीमेल में दिखेंगे वो दिखेंगे आपको पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में। वाई इज दैट? क्योंकि उनके पास ईस्ट्रोजन कम हो जाता है मेनोपॉज के बाद। सो दैट इज़ द लीडिंग फैक्टर जो कि आपके पास कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने में अफेक्ट करता है। ओके, सो दैट अरे वाज वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया, हमारी नॉलेज में भी इजाफा हुआ। थैंक यू सो मच हासिया। नो प्रॉब्लम। ओके, सो नाउ दैट आप सबने बहुत इंसाइटफुल चीज़ें ऐड कर दी, एंड आई फील के anybody who is going to follow these things, they are definitely going to get a lot of benefits out of it. So it was definitely a very very informative session overall. I'm really glad to have you all on board.
for this session today. And ending this session, I'm really grateful. Thank you, everyone, for being here and making this session a great success. Thank you, Asya, for having us. We Thank would you so definitely much. like to have you back again. If the next time आप we लोग plan on अपना doing it. फीडबैक प्लीज फीडबैक अपना जो है ना वो ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा सेशन एंड थैंक यू सो मच। आप लोग माइंड एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट में एज अ गेस्ट आए और बहुत अच्छा लगा। बिस्मा आपका भी बहुत शुक्रिया और मैम आपका भी और डॉक्टर आसिया आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छा होस्ट किया प्रोग्राम। बहुत अच्छा लगा। आगे भी आप लोग आते रहिए, हमसे कनेक्ट रहिए, हम इस तरह के पॉडकास्ट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम अनीता कि आपने जो है ये एक इंस्टीट्यूट बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया लोगों के लिए। एंड आसिया आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने जो है इनिशिएटिव लिया इतने अच्छे टॉपिक के बारे में। Okay, so basically the idea was Dr. Anita's. उनका ये idea था that we should do a session on this topic. So hats off to her for the topic. I'm not going to take the applause for that. नहीं, बहुत अच्छा आसिया, आपकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं और आपने कनेक्ट कराया है इन लोगों को मेरे से, तो आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग प्लीज़ व्हाट्सएप पे अपने जो है वो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। Thank you so much to all the viewers who are watching us online as well through YouTube. And thank you to our guest. And that's the wrap up